Good morning, children. I hope you all are doing well at home. Well, I am Satinder Kaur and I will be teaching you English in class 6. So, let's not waste any more time and start with our book Honeysuckle. Today, we are going to do lesson 1 of the book. The name of the chapter is Who Did Patrick's Homework? Now, children, I will read out one paragraph at a time and I'll try to explain it to you. Hope you all are ready. Here it goes. Patrick never did homework. Too boring, he said. He played hockey and basketball and Nintendo instead. His teachers told him, Patrick, do your homework or you won't learn a thing. And it's true, sometimes he did feel like an ignoramus. But what could he do? He hated homework. So now children, by now you must have come to know that there is a boy called Patrick in this story. This is a school-going boy who did not like to do homework. He just loved playing hockey, Nintendo. What is Nintendo? It's a video game. And basketball. So these were his favorite games. And his teachers used to warn him that Patrick, if you don't do your work, you will not learn a thing. You will not learn anything and you will lack knowledge. So it's better you do your work. And sometimes Patrick himself did feel that he will become an ignorant person. He will be an ignorant person. He will not know anything. But he could not help it. He hated homework. इस स्टोरी में पैट्रिक नाम का एक लड़का है जिसे होमवर्क करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है. उसे क्या पसंद है? हॉकी खेलना, बास्केटबॉल खेलना और निंटेंडो खेलना. सो उसके टीचर्स उसको हमेशा बोलते हैं कि तुम पैट्रिक अपना होमवर्क किया करो, नहीं तो तुम्हें कुछ समझ नहीं आएगा. बट पैट्रिक को होमवर्क करना अच्छा ही नहीं लगता. सो वो होमवर्क नहीं करता. उसे पता है कि होमवर्क ना करने से उसे कुछ समझ नहीं आएगा, वो कुछ सीख नहीं पाएगा, वो फिर भी होमवर्क नहीं करता है. नाउ चिल्ड्रन वी विल रीड सेकंड पैराग्राफ. Then one day he found his cat playing with a little doll and he grabbed it away. To his surprise, it wasn't a doll at all, but a man of the tiniest size. He had a little wool shirt with old-fashioned breeches and a high tall hat, much like a witch's. He yelled, "Save me! Don't give me back to that cat. I'll grant you a wish. I promise you that." अब इस पैराग्राफ में हम क्या देखते हैं कि एक दिन वो देखता है कि उसकी जो कैट है, His cat is playing with a little doll. वो एक गुड़िया की तरह किसी चीज से खेल रही है. तो वो अचानक उसे जाके झपट लेता. He grabbed it away. Grabbed means झपट लेना. उसे झपट लेता है. To his surprise, it wasn't a doll at all. उसको हैरानी होती है ये देखकर कि वो एक डॉल नहीं है. बट क्या है? A man of the tiniest size. Tiny क्या होता है? Small. So वो एक आदमी है छोटे से कद का. He had a little wool shirt with old-fashioned breeches and a high tall hat much like a witch's. अब इसमें क्या है? उसने पहना क्या हुआ है? उसने एक वूल शर्ट, वूलन शर्ट पहनी हुई है और ओल्ड स्टाइल के ट्राउजर्स पहने. ब्रिचेस क्या होता है? शॉर्ट ट्राउजर्स. उसने शॉर्ट ट्राउजर्स पहने हैं ओल्ड स्टाइल के और एक टॉल सी हैट लगाई हुई है. यू कैन सी दैट इन द पिक्चर चिल्ड्रन. उसने एक टॉल हैट पहनी हुई है जैसे कि विचेस पहनती हैं. विच क्या होता है? जादूगरनी, या फिर आप कह सकते हो वुमन विद मैजिकल पावर्स. ठीक है, एन अगली लुकिंग वुमन विद मैजिकल पावर्स. सो जो जादूगरनियां होती हैं ना, वैसी उसने हैट पहनी हुई है. He yelled. Yelled means shouted. Save me. Don't give me back to that cat. I'll grant you a wish. I promise you that. अब वो क्या चिल्लाता है? पैट्रिक को बोलता है चिल्लाते हुए कि मुझे इस कैट से बचा लो. मैं तुम्हारी एक इच्छा पूरी करूंगा. मैं आपको प्रॉमिस करता हूं. ठीक है. सो द टाइनीस्ट मैन जो है वो क्या बोलता है पैट्रिक को? जो टाइनी मैन है,
टाइनी मैन को हम एल्फ भी बोलते हैं, ठीक है। एल्फ होता है बौना आदमी विथ सम मैजिकल पावर्स, राइट। सो वो कहता है कि वो तुम मुझे कैट से बचा लो, मैं तुम्हारी विश पूरी करूंगा, ठीक है। अब पैट्रिक, नाउ चिल्ड्रन आई रीड आउट द थर्ड पैराग्राफ। पैट्रिक couldn't believe how lucky he was. Here was the answer to all of his problems. So he said, only if you do all my homework till the end of the semester, that's 35 days. If you do a good enough job, I could even get A's. अब इस पैराग्राफ में क्या कहता है? ऑथर कहता है कि पैट्रिक को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वो इतना लकी है, उसे अपनी सारी प्रॉब्लम्स का आंसर मिल गया था। उसकी सारी प्रॉब्लम्स क्या थी? होमवर्क करना। उसे होमवर्क करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, तो अब उसने सोचा कि ये एल्फ से होमवर्क करवाएंगे। सो उसने एल्फ को बोला कि हाँ, मेरी ये विश है कि तुम मेरा सारा होमवर्क एंड ऑफ सेमेस्टर तक कर दो, यानी 35 डेज तक तुम मेरा होमवर्क करोगे, और अगर तुम अच्छा काम करोगे तो मुझे ए ग्रेड भी मिल सकता है। नाउ द फोर्थ पैराग्राफ। The little man's face wrinkled like a dishcloth thrown in the hamper. He kicked his legs and doubled his fists, and he grimaced and scowled and pursed his lips. Oh, am I cursed? But I'll do it. अब क्या होता है कि ये सुनते ही, होमवर्क की बात सुनते ही, जो लिटिल मैन है उसका जो फेस है वो रिंकल्ड हो जाता है, यानी उस पर सिलवटें पड़ जाती हैं, यानी उस पर रिंकल्स आने लगते हैं, यानी उसके फेस का एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है। और वो कैसा हो जाता है? जैसे एक डिश क्लॉथ होता है हैम्पर में फेंका हुआ। डिश क्लॉथ क्या होता है? कपड़ा जिससे हम बर्तन को पोंछते हैं धोने के बाद। सो दैट इज अ डिश क्लॉथ। और हैम्पर क्या होता है? बास्केट विद अ लिड। तो ऐसा उसका फेस हो गया रिंकल्स वाला, जैसे एक डिश क्लॉथ होता है हैम्पर में फेंका हुआ। ही किक्ड हिज लेग्स एंड डबल्ड हिज फिस्ट। बेसिकली यहाँ पे वो अपना गुस्सा, उसके ये जो सारे एक्शंस हैं, जो उसके फेस का रिंकल होना, जो उसकी लेग्स को वो किक कर रहा है। जब आपको गुस्सा आता है किसी चीज पे, आपका मन नहीं करता काम करने का, तो आप क्या करते हो? आप लेग्स को अपनी किक करते हो ना, आप अपनी मुट्ठियों को ऐसे बंद करते हो। सो ऐसा ही एक्सप्रेशन जो था वो टाइनी मैन के फेस पे आ रहा था। ही ग्रिमेस्ड, स्काउल्ड। अब ये सारे जो वर्ड्स हैं, ग्रिमेस्ड, स्काउल्ड, पर्स्ड हिज लिप्स, ये सारे जो हैं एक्सप्रेशंस उसके फेस पे आ रहे थे, जिस यानी वो अपना गुस्सा दिखा रहा था, अपना एंगर दिखा रहा था, ठीक है। उसको अच्छा नहीं लग रहा था ये काम करना, बट वो एंड में क्या बोलता है कि मेरी तो किस्मत, मैं तो फंस गया हूं, आई एम कर्स्ड, नाउ आई विल डू इट, कि मैं इसे करूंगा, चाहे मैं फंस गया हूं बट मैं उसे करूंगा, क्योंकि वो उसने उसको प्रॉमिस किया था कि मैं उसकी मदद करूंगा। नाउ चिल्ड्रन, लेट्स टेक अ लुक एट द नेक्स्ट पैराग्राफ। एंड ट्रू टू हिज वर्ड दैट लिटिल एल्फ बिगैन टू डू पैट्रिक्स होमवर्क एक्सेप्ट देयर वाज वन ग्लिच। नाउ ट्रू टू हिज वर्ड मीन्स वो अपने जो उसने उसको प्रॉमिस किया था पैट्रिक को, वो अपने प्रॉमिस को पूरा करता है, अपने प्रॉमिस का पक्का है, और वो लिटिल एल्फ की, जो लिटिल एल्फ है वो पैट्रिक का होमवर्क करना स्टार्ट करता है। एक्सेप्ट देयर वाज वन ग्लिच। ग्लिच इज अ प्रॉब्लम, बेसिकली इट्स अ फॉल्ट इन सम मशीन, बट हेयर इट मीन्स कि एक प्रॉब्लम थी इस पूरी चीज में। वो पैट्रिक का होमवर्क करना शुरू करता है, बट एक प्रॉब्लम आती है। क्या प्रॉब्लम थी? द एल्फ डिडंट ऑलवेज नो व्हाट टू डू एंड ही नीडेड हेल्प। हेल्प मी he'd say, and Patrick would have to help in whatever way. अब प्रॉब्लम क्या आई कि जो एल्फ था, जो टाइनी मैन था, उसे पता ही नहीं था करना क्या है, और उसे हमेशा मदद चाहिए थी। वो हमेशा पैट्रिक से कहता कि मेरी हेल्प करो, मुझे नहीं आता ये करना। आई डोंट नो दिस वर्ड, द एल्फ स्क्वीक्ड while reading Patrick's homework. अब जब भी वो होमवर्क कर रहा होता था पैट्रिक का, वो पढ़ता था, उसे वर्ड नहीं आता था, तो वो चिल्लाता था। स्क्वीक्ड हियर मीन्स चिल्लाना। गिविंग अ शॉर्ट हाई पिच्ड क्राई, चिल्ला के वो बोलता था कि ये मुझे नहीं आता, गेट मी अ डिक्शनरी, मेरे को डिक्शनरी ला के दो। नो, व्हाट्स इवन बेटर, लुक अप द वर्ड एंड साउंड इट out by each letter.
पहले वो बोलता था मुझे डिक्शनरी ला दो, फिर वो ये कहता था कि आप ऐसे करो, डिक्शनरी नहीं, आप मुझे ये वर्ड ही पढ़ के सुनाओ, हर लेटर इसका पढ़ के सुनाओ, ये कैसे लिखना है। और जब when it came to maths, Patrick was out of luck. What are timetables? The elf shrieked. We elves never need that. अब वो जब मैथ्स का होमवर्क करने की बारी आती थी तो वो फिर पैट्रिक जो था उसकी किस्मत यहाँ भी साथ नहीं देती थी। आउट ऑफ लक मीन्स यहाँ पे भी उसकी किस्मत साथ छोड़ जाती थी। What are times tables? अब वो एल्फ दोबारा चिल्लाता था कि ये टेबल्स क्या होते हैं, हमने तो कभी सुने ही नहीं। वी एल्फ्स नेवर नीड दैट, हम एल्फ्स को इन चीजों की जरूरत ही नहीं पड़ती। सो चिल्ड्रन, आपने देखा कैसे हर चीज में जो एल्फ है वो उससे मदद मांग रहा है पैट्रिक से। एंड एडिशन, सब्ट्रैक्शन, यहां से हम पढ़ेंगे नेक्स्ट। एंड एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिविजन एंड फ्रैक्शंस, आप सब मैथ्स में करते हैं ना एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिविजन, फ्रैक्शंस, बट एल्फ्स जो हैं, जो वो टाइनी मैन है, उनके वर्ल्ड में तो ये सब नहीं होता, वो तो मैथ्स नहीं पढ़ते। सो वो बोलता है कि मुझे तो ये मैथ्स वैथ्स नहीं आता, ये क्या होता है एडिशन, क्या होता है सब्ट्रैक्शन, डिविजन, फ्रैक्शंस, मुझे कुछ नहीं पता। Here sit down beside me, you simply must guide me. क्या बोलता है वो कि तुम यहाँ मेरे पास बैठ जाओ, पैट्रिक से बोलता है, और मुझे गाइड करो। Elves know nothing of human history. अब हिस्ट्री पढ़ने की बारी आती है तो फिर से वो बोलता है कि मेरे को हिस्ट्री का भी कुछ नहीं आता। हिस्ट्री, एल्स नो नथिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, टू देम इट्स अ मिस्ट्री। कहते हैं हिस्ट्री जो है, वो कहता है कि एल्फ्स के लिए तो हिस्ट्री एक मिस्ट्री है, यानी रहस्य वाली बात है। सो द लिटिल एल्फ ऑलरेडी अ शाउटर जस्ट गॉट लाउडर। अब जो लिटिल एल्फ था वो पहले से चिल्ला रहा होता था, वो और तेज चिल्लाता है। गो टू द लाइब्रेरी, आई नीड बुक्स, मोर एंड मोर बुक्स, एंड यू कैन हेल्प मी रीड देम टू। अब वो क्या बोलता है, मुझे ये हिस्ट्री विस्ट्री नहीं आती, मुझे जाके लाइब्रेरी से बुक्स लाके दो, ज्यादा बुक्स लाके दो, और मेरी उनको पढ़ने में मदद भी करो। नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ। As a matter of fact, every day in every way, that little elf was a nag. Now, what is a nag? Nag is a person who troubles someone all the time, right? So, अब ये क्या हुआ कि ये जो लिटिल एल्फ था वो तो एक प्रॉब्लम बन गया, किसके लिए? पैट्रिक के लिए, क्योंकि वो पैट्रिक को हमेशा कुछ ना कुछ हेल्प मांगता था। पैट्रिक को कभी कहता था लाइब्रेरी जाओ, कभी कहता था मुझे रीड करके बताओ, कभी कुछ। Now Patrick was working harder than ever, and was it a drag? And पैट्रिक जो था वो ज्यादा काम करने लग गया था, बहुत मेहनत कर रहा था, लाइब्रेरी जा रहा था, बुक्स ला रहा था, फिर उसे बुक्स पढ़ के बता रहा था। सो वो बहुत वर्क कर रहा था, बहुत हार्ड वर्क कर रहा था। एंड वॉज इट अ ड्रैग? नाउ ड्रैग मीन्स डल एंड बोरिंग, समथिंग डल एंड बोरिंग। सो ये एक बोरिंग सी चीज थी। ही वॉज स्टेइंग अप नाइट्स, वो रात को देर तक जागता था। हैड नेवर फेल्ट सो वियरी, वियरी मीन्स टायर्ड। सो उसने कभी भी ऐसा थकावट महसूस नहीं की थी। was going to school with his eyes puffed and bleary. Now puffed means swollen eyes, सूजी हुई आंखें, और bleary means जिसमें से कुछ धुंधला दिखाई देता है। अब उसकी आंखें जो थी puffed थी और bleary थी, यानी उनमें से साफ दिखाई नहीं देता था जब वो स्कूल जाता था। क्यों? Because he was staying up late at night. He was actually keeping awake till late night. Why he was awake till late night? Because he was helping the elf out in doing the homework. Fine. Now the 8th paragraph. Finally, the last day of school arrived and the elf was free to go. As for homework, there was no more. So he quietly and slyly slipped out the back door. अब क्या होता है? लास्ट डे आ जाता है स्कूल का, स्कूल जाने का लास्ट डे है, और एल्फ जो है अपने प्रॉमिस से फ्री है। क्या प्रॉमिस किया था उसने कि इस सेमेस्टर के लास्ट डे तक वे उसका पैट्रिक का होमवर्क करेगा। अब होमवर्क भी खत्म हो चुका था। सो वो क्या करता है, और जो एल्फ है वो भी बहुत तंग आ चुका है। सो वो क्या करता है, क्वाइटली एंड स्लाइली। क्वाइटली मीन्स चुपचाप से, स्लाइली मीन्स सीक्रेटिवली, किसी को बिना पता चले
वो बैक डोर से निकल जाता है, यानी चला जाता है पैट्रिक को छोड़ के. Now the 9th paragraph. Patrick got his A's. His classmates were amazed. His teachers smiled and were full of praise. And his parents, they wondered what had happened to Patrick. He was now the model kid. Cleaned his room, did his chores, was cheerful, never rude, like he had developed a whole new attitude. अब पैट्रिक जब होमवर्क लेके स्कूल जाता है तो उसे ए ग्रेड मिलते हैं, सब चीज़ों में ए ग्रेड मिलते हैं. उसके क्लासमेट्स जो हैं वो अमेज हो जाते हैं, सरप्राइज हो जाते हैं. उसके टीचर्स बहुत खुश होते हैं, उसकी प्रेज करते हैं. एंड उसके पेरेंट्स, उन्हें तो समझ ही नहीं आता कि पैट्रिक को हुआ क्या है. वो तो एक मॉडल किड बन चुका है, एक बहुत अच्छा बच्चा बन चुका है जो कि अपना रूम साफ करता है. एंड चिल्ड्रन, व्हाट इज चोर्स? चोर्स इज द रूटीन वर्क दैट यू डू एट होम. वो अपने घर पे सारा काम रूटीन से करता है, चीयरफुल रहता है, खुश रहता है और कभी भी रूड बात नहीं करता. और जैसे उसने एक नया, उसका जो व्यवहार है वो पूरा बदल जाता है. नाउ द 10th and the last paragraph. You see, in the end, Patrick still thought he'd made that tiny man do all his homework. But I'll share a secret just between you and me. It wasn't the elf. Patrick had done it himself. इसमें राइटर क्या बताता है, ऑथर क्या बताता है हमें, कि पैट्रिक को ये लगता था कि उसने टाइनी मैन से सारा काम करवाया है, कि टाइनी मैन ने उसका सारा होमवर्क किया है. बट राइटर बोलता है कि ये एक सीक्रेट है, इसे किसी से बताना मत, किसी से शेयर मत करना, ये मेरे और तुम्हारे बीच में है. कि एल्फ ने पैट्रिक का काम नहीं किया, पैट्रिक ने खुद ही अपना काम किया. क्यों, कैसे? क्योंकि एक्चुअली पैट्रिक ही हेल्प कर रहा था, एल्फ को तो कुछ आता ही नहीं था, ना उससे मैथ्स आता था, ना हिस्ट्री, ना इंग्लिश. सो कौन था उसकी हेल्प करने वाला? So children, I hope you all enjoyed the story and understood it well. Now I am going to give you a little homework. What you have to do is, you have to note down difficult words and their meanings in your notebooks, right? Okay, but remember, don't behave like Patrick, okay? And do your homework on your own. And I'll be back with some more lessons. Till then, goodbye.